Yes, very good morning to all. Today we'll be dealing with vested interest and contingent interest under Transfer of Property Act 1882. Now before I start, I would like to give you a little bit of information about what do we mean by the term vested interest and what do we mean by the term contingent interest. Students in general, vested interest means an interest which we get immediately over the property, which we get immediately over the property. Enjoyment of that particular property may be postponed for future, but yes, we get immediate interest in that particular property the very moment the transfer takes place. So far as contingent interest is concerned, it is an interest which depends upon the happening or not happening of any future uncertain event. It depends upon the happening or not happening of any future uncertain event. It means that whenever a vesting of interest depends upon certain contingency, the contingency must be of a nature which may happen or which may not happen. It must be somewhat a future uncertain event. सिर्फ future event बोलने से काम नहीं चलेगा. Future में भी uncertain event अगर होता है, then in that case only we would say it is nothing but a contingent interest depending upon the happening or not happening of any particular event, which is again a future uncertain event. So this is actually what do we mean by the term vested interest and contingent interest. Now let us see what are the provisions which are provided under TP Act relating to this vested and contingent interest. Now, vested interest has been defined under section 19 of Transfer of Property Act. You'll always receive a question in a question paper, define the term vested interest and contingent interest and distinguish between them. So, from the exam point of view, we have to consider this particular section to be very important. Now, what do we mean by the term vested interest? Now, I have already given you a little bit idea about what do we mean by the term vested interest. Now, let us see further what it has been provided under the section 19. If at the time of transfer of property, if at the time of transfer of property, whenever I am transferring a property to you, an interest is created in the property in favor of a person. I transfer that property to you without specifying the time when it is to take effect. मतलब मैंने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त में टाइम नहीं बताया कि कब ये ट्रांजैक्शन इफेक्ट में आएगा. अब जब मैंने टाइम नहीं बताया तो इसका क्या मतलब निकालना है कि द वेरी मोमेंट प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, उसी मोमेंट में इंटरेस्ट जो है वो मिल गया है और इस तरीके से मिला हुआ इंटरेस्ट जो है वो क्या कहलाया जाएगा, वेस्टेड इंटरेस्ट कहलाया जाएगा. नेक्स्ट क्या बोलता है, इन टर्म्स स्पेसिफाइंग द टाइम व्हेन इट इज टू टेक इफेक्ट और फोर्थविथ. अगर मान लीजिए मैंने ट्रांसफर करते वक्त में प्रॉपर्टी अगर टाइम स्पेसिफाई किया है, मतलब पहली सिचुएशन में मैंने टाइम स्पेसिफाई नहीं किया था, तो क्योंकि मैंने टाइम स्पेसिफाई नहीं किया था, जिस भी मोमेंट में मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, ट्रांसफरी को इमीडिएटली उसका इंटरेस्ट मिल गया या इमीडिएटली वो ट्रांसफरी बन गया या इमीडिएटली वो उसका ओनर बन गया एंड अकॉर्डिंगली उसको मिलने वाला इंटरेस्ट जो है वो क्या हो गया, वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया. दूसरा बात जो है, अगर मैंने ट्रांसफर करते वक्त में क्या किया, अगर मैंने ट्रांसफर करते वक्त में बेसिकली उसमें टाइम स्पेसिफाई किया, देन इन दैट केस कब, यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का समय अलग और उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में जो मैंने ट्रांसफर की है उसमें सामने वाले को मिलने वाला इंटरेस्ट जो है यदि किसी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम जो है वो तो सर्टेन नेचर का ही है, आएगा ही. तो बोलता है ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मस्ट हैपन. अब बेसिकली टाइम तो आता है, लेकिन यदि वो टाइम जो है किसी इवेंट के रूप में है, अगर साल के रूप में है, डेट के रूप में है, तो वो तो आना ही आना है, ये बात कंफर्म है. लेकिन यदि वो किसी इवेंट के रूप में है और वो इवेंट ऐसा है जो मस्ट नेचर का है, मस्ट नेचर का इवेंट कौन सा होता है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे मंडे, थर्सडे, 12 तारीख, 30 तारीख या फिर 2023, 2025, इस तरीके से जो सर्टन नेचर के इवेंट हैं, ये साल तो आने ही हैं, ये तारीख तो आने ही है, ये महीना तो आना ही है.
चाहे कुछ भी हो। तो कहने का मतलब है ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट जो कि मस्ट नेचर का है, देन इन दैट केस इस तरीके से इस इवेंट के आने पर मिलने वाला इंटरेस्ट जो है, भले ही हमारा डेट ऑफ ट्रांसफर से लेके ये इवेंट आने तक एंजॉयमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पोस्टपोनमेंट हुआ, टेकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट पोस्टपोन हुआ, लेकिन वो कैसा नेचर का है, वेस्टेड नेचर का है। फॉर द रीजन वो कैसे इवेंट के ऊपर डिपेंड है, मस्ट नेचर के इवेंट के ऊपर डिपेंड है। तो इन टर्म स्पेसिफाइंग द टाइम व्हेन इट इज टू टेक इफेक्ट और फोर्थविथ और ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट व्हिच मस्ट हैपन, such an interest is vested unless a contrary appears from the term of the transfer। लेकिन यदि मान लीजिए कॉन्ट्ररी इंटेंशन अगर उसमें मेंशन किया गया है तब जाके ये वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं कहलाया जाएगा, लेकिन यदि कॉन्ट्ररी इंटेंशन मेंशन नहीं किया गया है देन इन दैट केस इट वुड बी टर्म टू बी अ वेस्टेड इंटरेस्ट। नाउ वेस्टेड इंटरेस्ट जो है ये डिफीट नहीं होता है किसी भी ट्रांसफरी के डेथ की वजह से बिफोर ही ऑब्टेन्स द पोजेशन। तो कहने का मतलब है अ वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन्स द पोजेशन। अगर मान लीजिए वेस्टेड इंटरेस्ट किसी ट्रांसफरी को दिया हुआ है, उसको वो वेस्टेड इंटरेस्ट है, बट यदि उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है बिफोर ही ऑब्टेन्स द पोजेशन, पोजेशन लेने से पहले ही उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो क्या वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसको, ऐसा नहीं होता है। वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब कि फुल प्रूफ इंटरेस्ट हमने उसको दे दिया है। तो ऐसे वक्त में इवन उसकी अगर डेथ भी हो जाती है बिफोर ही ऑब्टेन्स द पोजेशन, देन इन दैट केस इवन इट वुड नॉट बी एडवर्सली अफेक्टेड। Next is an interest that an intention that an interest shall not be vested is not to be inferred merely from a provision whereby the enjoyment of the property is postponed। कहने का मतलब है कि ऐसा मान लेना कि हमको आज प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जरूर की गई है लेकिन इसका एंजॉयमेंट हमारा फ्यूचर तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, तो इसका ये मतलब निकलता है कि हमको वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं मिला है, ऐसा नहीं है। इंटेंशन जो है दैट एन इंटरेस्ट शेल नॉट बी वेस्टेड इज नॉट इन्फर्ड, हमने ये हमको वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं मिला है ये बात हमने इन्फर नहीं करनी है। क्यों नहीं इन्फर करनी है, इसलिए क्योंकि हमारे ट्रांजैक्शन का जो बेसिकली डीड है उसमें यदि ये कहीं मेंशन किया गया है कि उस प्रॉपर्टी में हमारा जो एंजॉयमेंट है वो पोस्टपोन्ड है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं निकलता है कि आपको वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, आपको वेस्टेड इंटरेस्ट है। सिर्फ क्या किया गया है, जो एंजॉयमेंट है प्रॉपर्टी का वही वेस्टेड किया गया है, वही थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया है, आपका जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड ही रहेगा। नेक्स्ट इज अ प्रायर इंटरेस्ट इन द सेम प्रॉपर्टी इज गिवन और रिवर्स टू सम अदर पर्सन। अब जैसे कि हमने अनबॉर्न पर्सन का प्रोविजन देखा था सेक्शन 13, उसमें हमने देखा था कि प्रायर इंटरेस्ट जो है वो हम पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में क्रिएट कर देते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट ओनर होता है या अल्टीमेट बेसिकली जो पर्सन होता है बेनिफिशियरी, वो बाद में आने वाला होता है एग्जिस्टेंस में और प्रॉपर्टी उसको वेस्टेड दी गई होती है, क्योंकि अनबॉर्न पर्सन के नाम पे हम प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर सकते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट ही ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इट हैज बीन प्रोवाइडेड। तो यहाँ बोल रहा है कि प्रायर इंटरेस्ट जो है यदि हम किसी पर्सन के नाम पे क्रिएट कर भी देते हैं, बीच के लाइफ इंटरेस्ट के नाम पे अगर हम प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं और बाद में ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर पर्सन प्रायर इंटरेस्ट के जाने के बाद या 18 ईयर्स कंप्लीशन होने के बाद में किसी दूसरे पर्सन को मिलने वाली है, अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी होने वाला है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, देन इन दैट केस इवन इन सच सिचुएशन सच टाइप ऑफ अ ट्रांजैक्शन वुड बी टर्म्ड टू बी अ वेस्टेड इंटरेस्ट ओनली, क्योंकि प्रायर इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो तो केयर करने के लिए है प्रॉपर्टी के, अल्टीमेटली बेनिफिट तो किसको मिलने वाला है, अनबॉर्न पर्सन को मिलने वाला है या लेटर ऑन किसी पर्सन को मिलने वाला है। ऐसी सूरत में जो कोई और पर्सन है बेसिकली जिसको बेनिफिट मिलने वाला है, वो पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको वेस्टेड इंटरेस्ट है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में ऐसा कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। Now, income arising from the property is directed to be accumulated until the time of enjoyment arrive। अब मान लीजिए कि हमने ऐसा बोला, कल हमने डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम देखा था, उसमें हमने बेसिकली प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी ट्रांसफरी को, बट ट्रांसफर करते वक्त में हमने उसको कुछ कंडीशन रखी थी और वो कंडीशन ये रखी थी कि पेमेंट ऑफ डेब्ट्स के लिए, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड फॉर मीटिंग आउट दी पोर्शंस, इस चीज के लिए हमको प्रोविजन करके रखना है और उसके लिए हम डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं, भले ही हमने प्रॉपर्टी जो है वो सामने वाले को ट्रांसफर कर दी है। ऐसी सूरत में कहने का मतलब है वेस्टेड इंटरेस्ट का प्रोविजन कैसे अप्लाई होगा,
वेस्टेड इंटरेस्ट का प्रोविजन ऐसे अप्लाई होगा कि हमने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है ट्रांसफरी को, उसको डेफिनेटली वेस्टेड इंटरेस्ट मिला है, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट जो है उसको उसको कहीं पे भी एडवर्सली अफेक्ट नहीं हो रहा उसका वेस्टेड इंटरेस्ट, बट उसको क्या करना है, उसको ये 3 वजहों से, पेमेंट ऑफ दी डेब्ट्स जो ट्रांसफरर ने लिए थे, दूसरा मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एंड मीटिंग आउट दी पोर्शंस, बेसिकली ये चीज़ों के लिए उसको क्या करना है, उस प्रॉपर्टी पे से अराइज होने वाली इनकम को एक्यूमुलेट करना है। अगर उसको इस तरीके का डायरेक्शन भी दिया जाता है तो ये कैसा है, एक तरीके से इट इज़ वैलिड डायरेक्शन एंड अकॉर्डिंगली द पर्सन वुड नॉट बी कंसिडर, वो अपने आप को ये नहीं मानेगा कि भाई मेरे को वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं मिला, आपको वेस्टेड इंटरेस्ट ही मिला है प्रॉपर्टी में, बट आपको क्या करना है, ये 3 मैंडेटरी कंडीशंस हैं, अगर इनमें से कोई भी एग्जिस्ट होती है तो आपको इस पर्टिकुलर कंडीशन को मीट आउट करने के लिए कुछ समय के लिए क्या करना है, इनकम जो है बेसिकली उस प्रॉपर्टी से अराइज होने वाली उसको एक्यूमुलेट करना है। इफ अ पर्टिकुलर इवेंट शैल हैपन द इंटरेस्ट शैल पास टू अनदर पर्सन, अगर मान लीजिए मैं ऐसा कहती हूँ कि ये पर्टिकुलर इवेंट है, अगर ये हैपन हो जाता है देन इन दैट केस ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो है प्रॉपर्टी का ये ट्रांसफर हो जाएगा सम अनदर पर्सन को, तो भी जाके वो वेस्टेड इंटरेस्ट कहलाया जाएगा। अब कैसे, यहाँ पे कैसे डिपेंड करेगा, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने कोई वैलिड कंडीशन डाली है, वैलिड कंडीशन जो है वो सामने वाला पर्सन को फुलफिल करनी है, उससे फुलफिल हो सकती है, कंडीशन ऐसी वैलिड है कि वो सबसे फुलफिल हो सकती है, लेकिन यदि उसने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की देन इन दैट केस वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किसी दूसरे को चली जाएगी। इस तरीके का भी अगर मान लीजिए कंडीशन डाली जाती है और वो कंडीशन जो है मस्ट नेचर के इवेंट के ऊपर डिपेंड है, देन इन दैट केस भी वो वेस्टेड इंटरेस्ट ही कहलाया जाएगा। अब जो भी कुछ हमने पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ द अबव रीडिंग हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। वो कंक्लूजन पे कैसे पहुंच सकते हैं या क्या कंक्लूजन है, सबसे पहले वेस्टेड इंटरेस्ट जो है ये एक तरीके का इमीडिएट राइट है प्रॉपर्टी के ऊपर। ये कैसा राइट है, इमीडिएट राइट है प्रॉपर्टी के ऊपर। इन केस ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट के केस में जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है वो कंप्लीट होती है। जो इमीडिएट राइट होता है वो ईदर बेसिकली राइट टू प्रेजेंट एंजॉयमेंट हो सकता है या फिर राइट टू फ्यूचर एंजॉयमेंट भी हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का। तो कहने का मतलब है हमारा जो पोस्टपोनमेंट है वो एंजॉयमेंट पोस्टपोन होता है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे राइट हमारा वेस्टेड रहता है। फिर ऑन कंप्लीशन ट्रांसफर द इंटरेस्ट accrues to the transferee with immediate effect and the transferee's title is complete। जैसे ही ट्रांसफर कंप्लीट होता है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में जो भी इंटरेस्ट है वो ट्रांसफरी को चले जाता है इमीडिएट इफेक्ट के साथ में, और ट्रांसफरी का टाइटल जो है वो कंप्लीट माना जाता है। An interest is vested in a person unless a contract intention appears under the following condition। और ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो हम बोलेंगे कि अपने आप में कंप्लीट है अगर कोई दूसरा कॉन्ट्ररी इंटेंशन ट्रांसफर के वक्त में मेंशन नहीं किया गया है तो।